मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए सुमन स्वर्गियारी के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव ले जाया जा रहा है। आज सुबह बौझार एयरपोर्ट पर असम सरकार की ओर से मंत्री केशव महंत ने शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि दी है। गुवाहाटी से सड़क मार्ग से उनके नश्वर देह को बर्मा ले जाया जा रहा है। आज बाक्सा जिले के थैकाराज कोची में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बूढ़ी मां, पत्नी और 2 साल 11 महीने के बच्चे को छोड़ सुमन ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। वर्ष 2007 में सुमन के पिता कनक स्वर्गियारी को भी उग्रवादियों ने उनके घर पर गोली मार हत्या कर दी थी। अगले महीने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर सुमन के घर आने की बात थी, मगर तिरंगे में लिपटकर आज सुमन का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। আমি সুমন স্বৰ্গীয়াৰী লৈ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ। আৰু আমি তেখেতৰ স্বৰ্গগত আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰাৰ লগতে তেখেতৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ পৰিয়াললৈ 50 লাখ টকাৰ এক সাহায্য আগবঢ়াইছে। ইয়াৰ পৰা মৃতদেহ কেনেদৰে নিয়া হ'ব আৰু কেনেদৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব? মৃতদেহ ইয়াৰ পৰা সৈন্য বাহিনীৰ বেষ্টনীৰ মাজত যাব আৰু অসম পুলিচৰো এই ক্ষেত্ৰত এস্কৰ্ট পাইলট সকলো ধৰণে ব্যৱস্থাৰে এটা সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব। ইয়াৰ পিছত তেখেতৰ ঘৰ বৰমালৈ লৈ যোৱা হ'ব বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত। এতিয়া তেওঁলোকে তাতে যিখিনি আয়োজন কৰিব লাগে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বাক্সা সেইখিনি কৰি আছে। সকলোখিনি যিখিনি সন্মান সহকাৰে যিখিনি দিব লাগে সেইখিনি কৰা হ'ব। এইটো আচলতে খুবেই দুখজনক দুৰ্ভাগ্যজনক, কাৰণ এতিয়া আমি সন্মুখলৈ চাব লাগে। মই আমাৰ কলোনেল বিপ্লৱ ত্ৰিপাঠী ডাঙৰীয়া তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সন্মুখলৈ। আৰু তাত যিসকল নিহত হ'ল তাৰ ভিতৰত সুমন স্বৰ্গীয়াৰী আমাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰে বৰমাৰ কাহিবাৰী গাঁৱৰ হয়তো তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগতে বাকী নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈকো আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আশা কৰোঁ যে নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো উগ্ৰপন্থীজনিত সমস্যা এইটো বহু পৰিমাণে সমাধান হৈছে, যে বহুতখিনি বাকী আছে। মই অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানখিনি চৰকাৰ আছে সকলোৱে সহযোগ কৰি এই ইছ্যুটো যাতে সোনকালে সমাধান কৰে। কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে চীনৰ এগ্ৰেশ্যনটো ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট হৈছে। নৰ্থ ইষ্টখন যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পুনৰ ঘটি থাকে, আচলতে বাহিৰৰ মানুহৰ কাৰণে বা গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে এইটো খুব ভাল কথা নহয় আজিৰ দিনত। আৰু কাৰণ আজিৰ দিনত কোনোৱে অস্ত্ৰৰ জৰিয়তে কিবা এটা পাওক কৰক এইটো নিবিচাৰোঁ। আমি বুজি পাইছোঁ যে ইয়াৰ জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মজবুৰিটো আছে, কিন্তু মই ভাবোঁ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰক এখোজ দুখোজ আগত গৈ হ'লেও এই যাতে সমস্যাখিনি বেলেগ নালাগে। আজি আলফাৰ ক্ষেত্ৰতে যে হয়তো বয়স হোৱা এটা কথাই যে স্বাধীনতাৰ নামত আলোচনা হ'ব লাগে, কিন্তু স্বাধীনতাৰ নামত আলোচনা হ'লেই যে স্বাধীনতা পাব এইটো কথা নহয়। ভাৰতৰ সংবিধানৰ বা দেশৰ অখণ্ডতাৰ ক্ষেত্ৰত কম্প্ৰমাইজ হোৱাটো আমিও নিবিচাৰোঁ, কিন্তু কেৱল এটা শব্দ এটা কথাৰ কাৰণে আমি লাগি নাথাকি বা মণিপুৰৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি দাবী কৰিছে বা নাগালেণ্ডৰ যিটো কণ্ডিশ্যন হৈছে, মই ভাবোঁ ভাৰত চৰকাৰে আজিৰ দিনত হয়তো 20 খোজ আগুৱাই গৈ হ'লে আলোচনাখিনি কৰি কিনে সমাধান কৰিব লাগে। এইটোৱে কিন্তু আশা কৰা, এইটোৱে আজিৰ দিনত মূল আমাৰ সকলোৰে কথা হোৱা আছে। तो दर्शकों, इस वक्त की अहम खबर, मणिपुर टेरर अटैक में शहीद हुए सुमन स्वर्गियारी का पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव की ओर पहुंच रहा है। आपको दिखा रहे हम बर्मा से सीधी तस्वीरें उनके घर से। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तिरंगे में लिपटे सुमन स्वर्गियारी का आज अंतिम संस्कार होने वाला है उनके पैतृक गांव में। आपको बता दें कि बूढ़ी मां, पत्नी और 2 साल 11 महीने के बच्चे को छोड़ सुमन ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। और वहीं 2007 में सुमन के पिता कनक स्वर्गियारी को भी उग्रवादियों ने उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अगले महीने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर सुमन के घर आने की बात थी, लेकिन तिरंगे में लिपटकर आज सुमन का पार्थिव शरीर घर पहुंच रहा है और वहां पर तैयारियां की जा रही है। बर्मा से है ये तस्वीरें।
सुमन स्वर्गियारी के घर से आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। এনেকৈ হৈছে মানে ভাষা হৰাই গৈছে, কি ক'ম কেনেকৈ যি বুজাম ৰাইজক। মোৰ অৱস্থা মানে খাৰাপ হৈ গৈছে মানে, আৰু কি কৰিম। বাথৌ ধৰ্মৰ মতে আপোনালোকে গোটেইখিনি আমি নিয়মটো কৰিবই লাগিব। বাথৌ ধৰ্মৰ মতে যিখিনি আমাৰ নিয়ম আছে সেইটো কৰিম। আমাৰ যা যোগাৰটো কিছু হৈয়ে গ'ল, এতিয়া আহি পালে মৃত্যুদেহটো আহি পালে আৰু এইটো কৰি ল'ম আমি। তাৰপাছত চৰকাৰৰ ইয়াৰখিনি নিয়মখিনি কৰিব তেখেতসকলে, তাৰপাছত আমি আৰু লাষ্টত এইটো কৰি ল'ম। কিন্তু এইটোতো বহুত সহজ কথা হয়, এইটো জ্বলাই দিলেও খতম হৈ যাব। কিন্তু মোৰ সেই পৰিৱেশটো কি কেনেকৈ আহিব, কেনেকৈ চলিব আগলৈকে, সেয়ে চিন্তা লাগিছে মোৰ এতিয়া। মানে এই দুই তিনিদিনটো এনেকৈ লাগি আছে। মোৰ মানে হৃদয় ফাটি গৈছে। মোৰ মানে বুক কঁপি যায় মানে মনত পৰিলে। মানে 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 দিন ৰাত মানে কান্দন ওলাই আছে মোৰ মুঠতে। দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ চকু পানী নহয়। तो आप देख सकते हैं उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके पैतृक गांव बर्मा से है ये तस्वीरें, जहां लोग अपने दुख को बयां कर रहे हैं। एक तरफ जहां उनका सीना फक्र से चौड़ा है, वहीं आंखों में आंसू है। तिरंगे में लिपटा आएगा उनका वीर जवान बेटा। उनके नश्वर देह को आज यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए। तैयारियां की जा रही है, व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उनके नश्वर देह आज वहां पहुंचने वाला है और लोगों में शोक का माहौल देखा जा रहा है। और यहाँ आपको बता दें कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट के कायराना हमले में असम राइफल्स यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर बिप्लब त्रिपाठी के साथ साथ 7 लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी है। और पीएलए और एमएनपीएफ ने शनिवार रात को एक संयुक्त बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। और मारे गए असम राइफल्स में असम के वीर जवान सुमन स्वर्गियारी भी शामिल है। और आज उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव में लाया जाएगा। उनके पैतृक गांव बर्मा की है ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज उनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाएगा और तिरंगे से लिपट कर आज सुमन का पार्थिव शरीर घर पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि सुमन स्वर्गियारी अपने पीछे अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 साल 11 महीने के बच्चे को छोड़ गया है। उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। और उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव बर्मा में आज तैयारियां की जा रही हैं। और यहाँ अपने दर्शकों को बता दें कि वर्ष 2007 की बात है जब सुमन के पिता कनक स्वर्गियारी को भी उग्रवादियों ने उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अब मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में सुमन स्वर्गियारी शहीद हो गए हैं। और आज शहीद सुमन स्वर्गियारी के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। आपको बता दें कि सुमन स्वर्गियारी के घर का निर्माण कार्य जारी था। उनकी पत्नी ने बताया था कि उनके घर का निर्माण कार्य जारी था और उनकी आखिरी बात सुमन स्वर्गियारी से इसी बारे में हुई थी। और उन्होंने कहा था कि वो अपने बच्चे से मिलने अगले महीने उसके जन्मदिन पर आएंगे घर, लेकिन अभी तिरंगे में लिपटकर सुमन का पार्थिव शरीर घर पहुंच रहा है।